जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 228 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 228 क्या बताता है, तो चलिए स्टार्ट करें। आर्टिकल 228 सेज ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। क्या कहता है? कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट इज satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of this constitution, the determination of which is necessary for the disposal of the case. It shall withdraw the case and may A. either dispose of the case itself or B. determine the said question of law and return the case to the court from which the case has been so withdrawn together with a copy of its judgment on such question, and the said court shall on receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with such a judgment. 228A article says 228A article says special provisions as to disposal of questions relating to constitutional validity of state laws. 228 228A article says special provisions as to disposal of questions relating to constitutional validity of state laws repealed by the Constitution 43rd Amendment Act 1977 S10 WEF 13 4 1978. 229 article says 229 article says officers and servants and the expenses of high courts. Officers and servants, officers and servants and the expenses of high courts. Number 1. Appointments of officers and servants of a high court. Number 1. Appointments of the officers and servants of a high court shall be made by the Chief Justice of the court or such other judge or office or such other judge or officer of the court, other judge or officer of the court as he may direct, provided that the governor of the state may by rule require that in such cases as may be specified in the rule no person not already attached to the court shall be appointed to any office connected with the court save after consultation with the State Public Service Commission. Number 2. Subject to the provisions of any law made by the legislature of the state. Number 2. Subject to the provisions of any law made by the legislature of the state, the conditions of the service of officers and servants of a high court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of the court or by some other judges or by some other judge or officer of the court authorized by the Chief Justice to make rules for the purpose, provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the governor of the
state. Number third, the administrative expenses of a high court, including all salaries, allowances, and the pensions payable to or in respect of the officers and servants of the court, shall be charged upon the consolidated fund of the state, and any fees or other monies taken by the court shall form part of that fund. अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ इसका फटाफट। अनुच्छेद 228 अनुच्छेद 228 अनुच्छेद 228 अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। यदि उच्च न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा और का मामले को स्वयं निपटा सकेगा। नंबर खा, उक्त विधि के प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को जिससे मामला इस प्रकार मंगा लिया गया है लौटा सकेगा और उस न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा। अनुच्छेद 228 का राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध बताता है। अनुच्छेद 228 का बताता है कि राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 10 द्वारा 13/4/1978 से निश्चित। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा वे किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा। उच्च न्यायालय के जो अधिकारी और सेवक और उनके खर्चे, उनके बारे में ये अनुच्छेद बात करता है। अनुच्छेद 229 कहता है कि किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स जो है उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा और उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वे निर्दिष्ट करे। इसके अलावा या तो मुख्य न्यायमूर्ति करेंगे उनकी नियुक्तियां अधिकारियों की, उच्च न्यायालय के अधिकारियों सेवकों की, या फिर उनके निर्देश पर अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेंगे। तो ठीक है, परंतु उस राज्य का राज्यपाल, लेकिन वो उस राज्य का जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो नियम द्वारा ये अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में भी निर्दिष्ट की जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय में संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नंबर 2, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं। परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए जहाँ तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित है, उस राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। नंबर 3, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगी। तो ये एक जागरूकता अभियान है कि सभी लोग संविधान के बारे में जानें। मेरा मकसद है कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन अवेयरनेस को फैलाना है और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है इसको पढ़ने का, संविधान को घर घर पहुंचाना है, लोग जागरूक हों और अच्छे नागरिक बने, यही मेरा उद्देश्य है।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 230 आर्टिकल पढ़ूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट एंड लाइक प्लीज़।